امن اور ترقی کی ضامن اپنی پارٹی۔ ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسین قادر حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات اور ضمنی پنچایتی اور بلدیاتی نشستوں کے پہلے مرحلے کی پولنگ پرامن طور اختتام پذیر۔ پولنگ کی مجموعی شرح 51.76%۔ معقول سیکورٹی بندوبست کے بیچ بیشتر علاقوں میں رائے دہندگان نے بڑھ چڑھ کر کیا اپنے حق رائے دہی کا استعمال۔ چناؤ کے آخری مرحلے تک کسی بھی طرح کے ایگزٹ پول ظاہر کرنے پر اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی پابندی، اور لیفٹننٹ گورنر کی صدارت میں انتظامی کونسل نے دی کمیونیکیشن اینڈ کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر پالیسی کو منظوری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کی تاریخ میں آج پہلی بار ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات ہوئے اور آج پہلے مرحلے میں پولنگ کی شرح 51.76% رہی۔ پہلے مرحلے کے تحت آج صوبہ کشمیر کے 25 اور صوبہ جموں کے 18 DDC حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے معقول سیکورٹی انتظامات کے بیچ شروع ہوا، جو دن میں 2 بجے پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ انتظامیہ نے پہلے مرحلے کے لیے مجموعی طور پر 2644 پولنگ مراکز قائم کیے تھے، جبکہ آج کے مرحلے میں 1475 امیدواروں کی سیاسی قسمت بیلٹ باکسوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ DDC انتخابات کے ساتھ ہی ان پنچایتی اور بلدیاتی نشستوں کے لیے بھی پولنگ ہو گئی جو بعض وجوہات کی بنا پر خالی پڑی ہوئی تھیں۔ صبح کے 7 بجے کے ساتھ ہی ٹھنڈ کے باوجود کئی علاقوں میں رائے دہندگان نے جوک در جوک پولنگ مراکز کا رخ کیا۔ فقیر گجری، ہارون دارا، کیلر، لارنو، دمہال ہانجی پورہ اور سنبل کے پولنگ مراکز میں رائے دہندگان کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں۔ روایتی کپڑوں میں ملبوس ووٹران خاص طور سے حق رائے دہی کا پہلی بار استعمال کرنے والوں میں خاصا جوش پایا جا رہا تھا۔ غریبوں کی فریاد سنیں، اچھے نمائندوں کو چننا چاہتے ہیں، اب ہم اسی لیے اکٹھے ہو گئے اپنا اپنا نمائندہ چننے کے جو کام ہمارا کرے، جو غریبوں کو مضبوط کرے اور غریبوں کے ساتھ تعاون کرے۔ آج ہم چننا چاہیں گے وہ جو ہمارا کام کرے گا، جو ہمارے کام آئے گا۔ ہر مسائل درپیش ہے، پانی نہیں، بجلی نہیں، سڑک نہیں، راستہ نہیں۔ ہم نے اپنا ووٹ اس لیے کاسٹ کیا ہے کہ ہمیں ڈیولپ چاہیے اور ہمیں صحیح نمائندہ چاہیے جو کہ لوگوں کا کام کرے، نہ کہ وہ اپنا ہی سوچے۔ واریاہ مسائل یم اس آز تامت حل گئی کی، اس لیے زون مناسب کہ پنن بچہ یہ انشاءاللہ مقصد لوگ تک جو یہاں ووٹ ڈالنے آئے ہیں اس سردی میں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے گراؤنڈ لیول پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، پہلے یہ وقفہ۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں، اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ نمستے، آداب، ست شری اکال۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل الیکشنز، پنچایت بائی الیکشنز 2020 جموں اور کشمیر میں شروع ہو چکے ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے صحیح امیدوار کو چنیں جسے گاؤں کی ترقی ہو اور خوشحالی ہو۔ میں ثنا دعا، فیمنا مس انڈیا 2017 آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس الیکشنز 2020 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ چلیے اس پر عہد کر لیں کہ اپنا ووٹ جاتی، دھرم اور پیسے پر نہیں بلکہ صحیح امیدوار کو دیں، بنا لالچ اور ڈر کے۔ Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. خبروں میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔
जम्मू में चुनाव के इख्तिताम पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि आज मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 51.76% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा 68.69% पोलिंग पुंछ ज़िला में दर्ज की गई। कश्मीर सूबे में सबसे ज़्यादा 56.96% पोलिंग बडगाम ज़िला में रिकॉर्ड की गई। कुपवाड़ा ज़िले में आज 3 हलकों कलारूस, कालपोरा और टंगडार में वोट डाले गए, जहां मजमूई तौर पर 50.75% वोटिंग दर्ज की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कलारूस में 49.63, कालपोरा में 41.33 और टंगडार में 57.85% पोलिंग दर्ज की गई। ज़िला के बाज़ इलाकों में लोगों ने जमहूरी अमल में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। ज़िला बडगाम के खान साहब हल्के में भी डीडीसी निशस्त के लिए वोट डाले गए। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वहां वोटिंग की शरह 57% रही। हल्के के कई पोलिंग मराकज़ पर सुबह सवेरे सर्दी के बावजूद लोगों को पोलिंग मराकज़ के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए देखा गया। अनंतनाग में आज पहले मरहले के तहत पहलगाम और लारनू में वोट डाले गए। वहां डीडीसी निशस्तों के लिए 45.3% और लोकल बॉडीज़ के लिए 68.3% वोटिंग दर्ज की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वहां भी कई पोलिंग मराकज़ पर लोगों का हौसला अफजा रश देखा गया। बांडीपोरा के 3 डीडीसी हलकों सुंबल, तुलेल और गुरेज में पोलिंग की मजमूई शरह 43.57 रही। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सुंबल में 48.88, तुलेल में 54 जबकि गुरेज में 27% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। गांधरबल जिला में आज 2 डीडीसी हलकों गुंड ए और गुंड बी के लिए वोट डाले गए। गुंड ए में वोटिंग की शरह 42.4 और गुंड बी में 54.05% वोटिंग दर्ज की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक गनीवन, ब्राव और ठ्यून जैसे इलाकों में जमकर पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बारामूला ज़िले में आज रफ़ीआबाद और टंगमर्ग डीडीसी ब्लॉकों में वोट डाले गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक टंगमर्ग में 43.31% जबकि रफ़ीआबाद हल्के में 35.23% वोटिंग दर्ज की गई। कुलगाम ज़िले में आज 2 ज़िला तरक्याती कौंसिल हलकों दमहाल हाजीपोरा और डी के मर्ग में वोट डाले गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इन दोनों हलकों में मजमूई तौर 34.10% पोलिंग दर्ज की गई। शोपियां ज़िला में आज 2 हलकों कैलर अव्वल और कैलर 2 में वोट डाले गए, जहां मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 42.60% दर्ज की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इन हलकों के करेवा, शादाब, सवन और नसरपोरा जैसे इलाकों में भारी पोलिंग हुई। श्रीनगर ज़िले में आज 7 हलकों हारवन 1, हारवन 2, 3, 4, 5, 6 और खनमो 1 के लिए वोट डाले गए। अगरचे इन हलकों में ज़ायद 30% वोटिंग होने की इतलात मौसूल हुई हैं, ताहम हतमी शरह का अभी इंतज़ार है। पुलवामा के अचगोजा ब्लॉक में आज 3 ख़वातीन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए डीडी निशस्त के लिए वोट डाले गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पोलिंग की शरह 6.70% रही। उधर जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में भी पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदगान का तांता बंधा रहा। वहाँ कई पोलिंग मराकज़ पर उम्र रसीद अशख़ास और जिस्मानी तौर से कमज़ोर अफराद को भी हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए बेताब पाया गया। रामबन ज़िला में आज 3 हलकों रामसू ए, रामसू बी और खड़ी के लिए वोट डाले गए। तीनों हलकों में पोलिंग की मजमूई शरह 64.22% रही। रामसू ए में 61.23, रामसू बी में 67% और खड़ी में 66.47% वोट पड़े। उधमपुर ज़िला में 2 हलकों के लिए आज डीडीसी निशस्तों के लिए वोट डाले गए। इनमें दूदू बीगढ़ में 50.73% और लाठी मरोठी 6 में 64.12% पोलिंग दर्ज की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में जारी जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के आखिरी मरहले तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी इदारा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिए इस तरह का कोई मवाद शाया नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पहले मरहले की पोलिंग के बाद अब सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की तमाम तर तवज्जो दूसरे मरहलों की मुहिम पर मरकूज़ हो गई है। दूसरे मरहले की पोलिंग 1 दिसंबर के लिए तय है, जिसके लिए आज भी मुतल्लका उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ इलाकों में जाके ज़ोरदार मुहिम चलाई। इस मरहले के तहत बारामूला के कुंजर और जैनागीर, कुलगाम के मज़गाम और पोम्बे, अनंतनाग के शांगस, पुलवामा के शादी मर्ग और त्राल, कुपवाड़ा के रमहाल, रेडी और चौकीबेल, बडगाम के बिरोवा, बांडीपोरा के गनिस्तान और नवगाम, श्रीनगर के खनमुदोम और सोम, श्रीनगर
1 और 3 कमरवारी अव्वल और दोम, शुपैयां के रामनगरी और कांजी ऊलर, जिला गांधरबल के कंगन A, B और C में वोटिंग होगी। ओडी चुनाव हलके के जामुर पैटर्न में आज बीजेपी का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिस दौरान बीजेपी के कौमी तर्जमान सैयद शाहनवाज हुसैन और जम्मू कश्मीर बीजेपी की तर्जमान दरख्शा अंद्राबी ने शिरकत की। उन्होंने जीरो लाइन पर मुकीम लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें तरजीही बुनियादों पर बंकर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो DDC चुनाव के दौरान हलके की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट दें। इंतजामी कौंसिल ने कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के निशानों को पूरा किया जा सकेगा। इंतजामी कौंसिल की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू में मुनक्कद हुई। नई पॉलिसी के तहत टेलीकॉम सेक्टर का बुनियादी ढांचा बिछाने में मजीद आसानियाँ पैदा होंगी, जिसमें मोबाइल टावरों के अलावा ज़ेर ज़मीन ऑप्टिकल फाइबर भी शामिल है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज राजभवन जम्मू में जम्मू कश्मीर की 5 सरकारी ज़बानों पर मबनी अपनी नौयत के पहले पंचायती रिसाला परिवर्तन को जारी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों में शाया करदा इस किताबचे के लिए महकमा देही तरक्कियात की सराहना की, जिसमें बैक टू विलेज सोम के तहत अब तक की पेशरफ्त का खुलासा किया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये किताबचा रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज सेक्टरों में तरक्की की असल तस्वीर पेश कर रहा है। उद्योग भवन जम्मू में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान की सदारत में डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू की एक जायज़ा मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सनती यूनिट कायम करने के लिए काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो कारखानादारों की ख्वाहिशों को तरजीहात में रखें। मीटिंग में महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी, डायरेक्टर अनु मल्होत्रा और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे की हुसूलियाबियों और मौजूद सनती मंजरनामे से मुतल्लिक मुफस्सिल तफसीलात दी। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 512 नए मामलों की तस्दीक हो गई है, जिनमें से 300 सूबा जम्मू और 212 सूबा कश्मीर से हैं। 24 घंटों के दौरान 632 मुतासरीन सेहतयाब भी हुए, जबकि 4 मरीजों की मौत वाक़या हुई है। महकमा सियाहत कश्मीर और टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आज राजबाग में खुशखती से मुतल्लिक 2 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया। खुशनवी से मुतल्लिक इस प्रोग्राम में वादी के तकरीबन 50 शुरका हिस्सा ले रहे हैं। आज पहले रोज़ डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर निसार अहमद वानी और ज्वाइंट डायरेक्टर तबस्सुम कामली ने स्टॉलों का मुआयना करके फ़नकारों से तबादला ख्याल किया। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर की सदारत में फूड सेफ्टी अफसरान की एक टीम ने आज श्रीनगर के कई इलाकों में सिगरेट और दीगर तंबाकू अशिया की एक्ट की अमलावरी के सिलसिले में एक मुहिम चलाई, जिस दौरान 14,000 से ज़ायद मालियत के सिगरेट और दीगर तंबाकू अशिया जब्त किए गए। इसके अलावा कुकर बाजार श्रीनगर में एक दुकान को भी सरबमोहर किया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी, जबकि बड़ी और मालबरदार गाड़ियों को जखानी उधमपुर से श्रीनगर आने दिया जाएगा। ताहम मुसाफिरों से कहा गया है कि वो शाहराह पर सफ़र शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला आमतौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।